Please let me know, screen is visible to all of you or not? Screen is visible to all of you? Yes, sir. Okay. So let's begin. So what I have explained in the last few lectures, this is just revision class for unit 1. Okay. And I'm taking this class by keeping things in mind that we will not be in the stress. So see, this is unit 1. And in the unit 1 itself, what is Fourier's law? What is Fourier's law? Hmm? Q vector is equal to minus k del t, gradient of t. And I have derived the heat diffusion equation. That was what? Del dot k del t plus q bar is equal to rho c del t over del t. Now I told you if k is constant, this equation will reduce into k. You can divide the whole equation by k. So rho cp by rho c by k and k by rho c is thermal diffusivity. So this is the inverse of thermal diffusivity. The thermal diffusivity you will represent by alpha. So you can write further del k, you have divided by k. So del square del dot del square t. This is called the Laplacian plus q bar, that is heat generation, heat source term, divided by k, of course, is equal to 1 upon alpha thermal diffusivity and del T over del T, meaning this is the three-dimensional heat diffusion equation in case of k constant, thermal conductivity constant. Now I told you, अब मुझे ये बताओ, अगर वन डायमेंशनल हीट डिफ्यूजन हो रहा है तो केवल इस लाप्लासियन ऑपरेटर सपोज एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, देन इट विल बी रिड्यूस टू del 2t over del x square, right, plus q bar k, क्योंकि y और z वाला टर्म नहीं आएगा, is equal to 1 upon alpha del t over del t. Suppose there is no source term, then this will be 0 and this will be 0 in case of steady state. So representing steady state del t or del t is 0. Okay, so this term will settle down to 0, and since there is no heat source term, so q bar by k is equal to 0. So further reduction in this differential equation is del 2t over del x square is equal to 0. Now since here t is only function of x, so you can change this partial derivative to normal derivative. So d2 t over dx square is equal to 0. Now this differential equation is second order, so you will need two boundary conditions. Suppose we are taking the solid wall. So solid wall, suppose x is equal to x1 and x is equal to x2 is right here. This is the limit of x1 and x2, and at x is equal to x1 you will have temperature T is equal to T1, and at x is equal to x2 you will have T is equal to T2. Now integrate this twice, you will be getting the temperature profile in this solid. Okay, so integrate once, you will get one arbitrary constant, so dt over dx is equal to dt or dx is equal to one arbitrary constant, let's say c1, and once you integrate again this, then you will get t is equal to what, c1x plus c2. So this is nothing but the linear temperature profile. Now put at x is equal to x1 t, through boundary condition you will get the value of these two arbitrary constants. So at
X is equal to x1 t1, so t1 is equal to c1 x1 plus c2, and t2 similarly is equal to c2 x2 plus c1 x2 plus c2, and subtract these two. You will be getting the value of solve for this. So subtract this, then you will be getting minus 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 c2 will cancel out. So t1 minus t2 is equal to t1 minus t2 is equal to what, c1 common, then x1 minus x2. From here you will be getting C value of constant C1 is equal to T1 minus T2 divided by x1 minus x2. Okay, and once you put the value of this C1 into any one of this equation, you will be getting the value of C2. So let's put in this equation 1. So you will be getting T1 is equal to C1 की जगह पे ये रखो तो T1 minus T2 divided by x1 minus x2. This is one thing, multiplied by x1 plus C2. Okay, so C2, the value of C2 would be what? C2 would be C2 is equal to T1 minus T2 divided by x1 minus x2. All right, uh, and C2 is equal to T1. Sorry, T1 minus T2 divided by x1 minus x2 multiplied by x1. So this is the value of C2. Okay. So C1 and C2 you will get. Now T1 will be given, this is number, some number, T1 T2 some number, x1 x2 some number, x1 some number. So you will finally get a number C1, constant C2, and C1 is also you will be getting some number. And temperature profile is what? T is equal to C1 means some number, constant number, x1 plus C2. So this is the linear temperature profile, of course, linear temperature profile. So this linear temperature profile, straight line, what is the slope of this temperature profile? Batao. Compare. C1. Y is equal to mx plus c, isn't it? So m is c, c1, right here. Getting it or not? So slope of this is c1. So with the c1 slope, you will be getting temperature profile. So let me draw the temperature profile in this plane wall. So in this plane wall, what will be the temperature profile? Suppose T1 temperature is right there if you are taking, and T2 of course less. That's why the flowing heat is flowing in this direction, x direction. So what will be the temperature profile? Since joining T1 and T2 is a straight line, और straight line के लिए केवल क्या चाहिए आपको? 2 पॉइंट चाहिए, बस straight line बन जाएगा. बोलो, एक लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 C here. This is called the line segment. 2 point fixed kar do. So this is the line segment, and this is called the arrow. Okay, and this is called the line. Line means you can move in this side into infinity and in this side to infinity. So line, for line, you will be getting this line segment here, right here. So T1 temperature to T2 temperature, straight line profile. You will be having temperature profile, very straight line, and slope of this temperature profile is C. बोलो सही बात है या नहीं? Am I right or wrong? Be interactive यार, समझ आ रहा है या नहीं? हाँ, ये बातें आपको समझ में आ गई बेटा? तो ये चीज है हाउ टू गेट द टेम्परेचर प्रोफाइल. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम हीट डिफ्यूजन इक्वेशन यू कैन गेट द टेम्परेचर प्रोफाइल. अब आप मुझे बताओ, अगर आपको टेम्परेचर प्रोफाइल मिल गई है तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे हीट फ्लक्स? सो हीट फ्लक्स मैंने क्या लिखा था? हीट फ्लक्स क्या होता है फोरियर लॉ से? के dt or dx. So once you get, I told you, you get the temperature profile E is equal to C1x plus C2, right? Then heat flow you can calculate.
This is the heat flux and heat flow rate we are taking at this because we want to compare with current flow rate, so I am not taking flux, I have heat flow rate. So capital Q dot is equal to क्या माइनस के, अब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे के dt or dx. So once you are having the temperature profile you got from the heat diffusion equation, then you take the derivative of this to get the dt over dx. तो dt over dx यहाँ से निकालो, क्या मिलेगा? dt over dx is equal to what? dt over dx is equal to c1. Am I right? And c1 you just calculated. What is the value of c1? Right here you see the value of c1 is what? देखिए मैं केवल एक ही हीट डिफ्यूजन इक्वेशन इज द की इक्वेशन इन कंडक्शन, कोई भी प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व कर रहे हैं। ये अनदर अप्रोच बता रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। c1 की वैल्यू ये है, तो कैन आई पुट राइट हियर, सो यू कैन पुट t1 minus t2 divided by x1 minus x2, isn't it? And once you will get the value, put here c1 dt over dx, so क्या हो जाएगा माइनस के एंड dt over dx लग दो, तो t1 minus t2 divided by x1 minus x2, isn't it? बोलो है बात सही कि नहीं? बट आप देख रहे हो ये स्लैब जो था यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू x1 लिया था, यहाँ पे x इज इक्वल टू x2 रखा था, पर x2 इज ग्रेटर देन x1 बिकॉज रियल लाइन पे ये लेटर बाद में आता है, इट विल कम लेटर। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 हो जाएगा, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो जस्ट मल्टीप्लाई, सो के ए T1 तो हायर टेम्परेचर है, ये T1 माइनस T2 हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 इज नथिंग बट द थिकनेस ऑफ दिस, इसको यल कहे थे। सेम इक्वेशन यू विल बी गेटिंग फॉर द प्लेन वन। अब देखो क्या मिलेगा, Q डॉट इज इक्वल टू K T2 माइनस T1 T1 माइनस T2 हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, मतलब बोथ इंडिकेट टेम्परेचर में जो हायर होगा उससे पहले लिखेंगे, लोअर है बाद में। अब यहाँ पे देखो x2 माइनस x1, यहाँ पे डिस्टेंस है x2 माइनस x1, तो दिस वुड बी पॉजिटिव बिकॉज हायर t लोअर t एंड हायर x lower x, so this would be positive, K would be positive, heat transfer area is positive, heat transfer rate is positive, so rate is always positive quantity. So यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये मिल गया आपको। इसे कैसे लिख सकते हो बेटा बताओ? इसे लिख सकते हो वोल्टेज डिफरेंस जैसे लिखते हो तो T1 माइनस T2 लिखो, और x2 माइनस x1 जैसे डेल्टा बी अपॉन आर लिखते हो तो वो करंट हो जाता है, तो डेल्टा बी पहले लिख लो T1 माइनस T2। अब देखो और बाकी को माइनस करो डिनोमिनेटर में, तो कैसे लिखोगे x2 माइनस x1 एंड डिवाइड, ये के न्यूमरेटर में है तो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में ही सब कुछ लाना चाहते हो तो इट विल कम लाइक दिस। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब ये हो गया रेसिस्टेंस की नहीं हो गया, तो दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 एंड दिस इज द RTS। तो RTS, अब ये x2 माइनस x1 क्या है? थिकनेस है जिसे हम L कह दिए थे वहां पे, तो यू नो L बाई के लुक्स लाइक दैट और नॉट? बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यस और नो? यस सर। तो RTS इज इक्वल टू x2 माइनस x1 के। अच्छा यहाँ तक ये बताओ मुझे, मैंने हीट डिफ्यूजन इक्वेशन को ही सेंट्रल पॉइंट मान के डिराइव किया कि नहीं? दिस इज द अनदर अप्रोच, बोलो है या नहीं? सही बात। तो आपको हम डिफरेंट अप्रोच बता रहे हैं हाउ टू प्रोसीड, सो दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास, ओके? So you will get to know all the different approach how to solve the problems. Now we are moving to proceed. अब यहाँ पे हमने कंडक्शन में आपको प्लेन वाल का बता दिया, चलो ठीक है आपने समझ लिया बेटा, कंडक्शन प्लेन वाल। अब हम अनदर टू ज्योमेट्री जो हम लेने जा रहे हैं, वन इज सिलेंड्रिकल सेल सिलेंडर, हालो सिलेंडर, एंड अदर इज हालो स्फीयर, इजंट इट? अब हम इन दोनों के लिए डिराइव कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कंडक्शन में, यहाँ पे तो कहा गया x2 माइनस x1 बाई के, चलो ठीक है, x2 माइनस x1 इज नथिंग बट द थिकनेस ऑफ प्लेन वॉल बिकॉज दिस इज x2 एंड दिस इज x1, so x2 minus x1 means this distance means thickness of the plane wall, isn't it? So thickness। अब हम यहाँ पे जब हम सिलेंडर और स्फीयर में जाएंगे तो सिलेंडर की थिकनेस क्या होगी? मान लो ये इनर रेडियस सिलेंडर का और आउटर रेडियस सिलेंडर का ऐसे है, इस तरह से लिया, तो इनर रेडियस RI है और आउटर रेडियस RO है,
आर ओ माइनस आर आई वुड बी थिकनेस। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा। Yes, sir. तो x2 माइनस x1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? आर ओ माइनस आर आई मीन्स आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। के जगह पे के लिख दिया। अब ए के जगह पे क्या आएगा? तो ए, अब आप हीट ट्रांसफर टेकिंग प्लेस इन द रेडियल डायरेक्शन। बोलो हो रहा है कि नहीं? अगर हायर टेम्परेचर इनसाइड माने और आउटर लोअर टेम्परेचर आउटसाइड माने तो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड हीट विल फ्लो। बट अब यहाँ पे एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर अलग अलग हो जा रहा है कि नहीं? इनर में रेडियस कम है और ये सिलेंडर है, सो 2 पाई आर एल विल बी हीट ट्रांसफर एरिया, बट आर आई है इनसाइड और आर ओ, सो हीट विल क्रॉस टू एरियाज और इन बिटवीन इंक्रीजिंग एरियाज। तो इसमें देखो 2 पाई आर आई, यहाँ पे इसकी एरिया क्या हो जाएगी? 2 पाई आर आई, और आउटर की एरिया क्या हो जाएगी? लेट मी मेक इट विद डिफरेंट कलर सो यू विल अंडरस्टैंड। सो देखो यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं सिलेंडर का, और यहाँ पे दूसरा है। तो देखो यहाँ पे बेटा क्या है? आर आई है, ओके, एंड लेट मी टेक डिफरेंट कलर एक्सप्लेन। तो देखो यहाँ पे आर आई है, और ये बाहर जो रेडियस है वो क्या है? कंप्लीट आर ओ है। तो ये जो थिकनेस होगी वो कितना हो गई? आर ओ माइनस आर आई। बोलो सही बात है। अब दिस आर ओ माइनस आर आई थिकनेस और हालो सिलेंडर है, सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन। तो हालो सिलेंडर है, सो इट विल प्रोसीड लाइक दैट। अब क्या होगा बेटा कि इसमें हीट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, राइट, इन द रेडियल डायरेक्शन। सपोज वन डायमेंशनल हीट फ्लो हम ले रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में हीट फ्लो करेगी, तो इट विल काउंटर दिस एरिया एज वेल एज दिस एरिया, परपेंडिकुलर एरिया, एंड बोथ एरियाज आर डिफरेंट। सो व्हिच एरिया यू विल टेक? तो के जगह पे तो के ही ले लिया, थर्मल कंडक्टिविटी थी। के जगह पे तो मैंने के ही ले लिया। व्हिच एरिया यू विल टेक? आई विल टेल यू दैट here you will take logarithmic mean area, ALM. So similarity you are getting. So this is the resistance. In the spherical case, thickness again would be R naught minus Ri. ये स्फेयर है Ri एंड R naught, Ri इसकी थिकनेस है और R naught इसकी थिकनेस है सेंटर से। तो R naught माइनस Ri इतना सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो यू विल बी गेटिंग थिकनेस, दिस मीन्स R naught माइनस Ri। ऑलराइट, सो आर नॉट माइनस आर आई की जगह पे थिकनेस तो यही हो गई। अब के जगह पे तो होगा के ही, चलो के कर देते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, नो चेंज इन थर्मल कंडक्टिविटी, बट एरिया इसमें भी वेरी कर रही है। तो एरिया हम लॉगरिथमिक, अगर हम सिमिलर स्ट्रक्चर रखना चाहते हैं ताकि हमें रटना ना पड़े कोई चीज, एकदम हमें दिमाग में बैठ जाए कि ये चीज है, अब हमें कुछ भी नहीं रटना है, सारा जो फॉर्म है वो थिकनेस डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी इनटू सम एरिया, एंड दैट सम एरिया cross sectional area in case of cylinder and sphere a little bit different, but you will take care of। यहाँ पे जो होगा मैं बता रहा हूँ, ए वो होगा ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ पे लॉगरिथमिक मीन ना होकर के क्या होगा बेटा? बोलो, ज्योमेट्रिक मीन। अभी ऐसे समझ लो फिर हम बताते हैं। यहाँ पे क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन, AGM होगा। समझ आया कि नहीं यहाँ तक? बोलो, समझ आया? अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि लॉगरिथमिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है। पता है तुम्हें ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अगर दो एरिया है, इनर एरिया AI है और आउटर एरिया AO है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? बोलो जल्दी से। इस दो नंबर का Root ज्योमेट्रिक A1. मीन AI स्क्वायर रूट ऑफ AI A0 होता है कि नहीं होता है? तो दिस वुड बी लाइक दैट, एरिया इनर एरिया एंड आउटर एरिया। और ALM लॉगरिथमिक एरिया क्या होता है? 2 नंबर का, रिमेंबर फ्रॉम योर स्कूल लेवल, x1 और x2 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ x1 x2 होता है कि नहीं? अब हम बताने जा रहे हैं आपको लॉगरिथमिक एरिया क्या होता है। तो लॉगरिथमिक एरिया की डेफिनेशन समझने के लिए आपको मतलब कुछ लॉग का टर्म आएगा तभी तो लॉगरिथमिक इसे कहा जा रहा है। बोलो आएगा कि नहीं? अदरवाइज व्हाई वी कॉल इट लॉगरिथमिक एरिया? सो लॉगरिथमिक एरिया ALM would be, I will be telling you that in the numerator would be something and in the denominator would be something. So न्यूमरेटर भी क्या होगा लॉगरिथमिक मीन एरिया में? बताओ लॉगरिथमिक मीन कैसे लेते हैं, एंड व्हाई आर यू टेकिंग फर्स्ट व्हाट एंड देन व्हाई? पढ़ा है कभी?
हेलो, अगर पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊं? हाँ बच्चों, नहीं। नहीं पढ़ा है ना, तो मैं बता दे रहा हूँ। लॉगरिथमिक मीन एरिया में हम क्या लेते हैं बेटा, कि यहाँ पे हम दो एरिया का A1 A2 अगर हम ले रहे हैं तो दो एरिया का डिफरेंस लेते हैं A1 माइनस A2, और उसी का लॉग हम टॉप पे ले लेते हैं A1 डिवाइडेड बाई A2। अगर हम इसी को हम ln A2 बाई A1 लिखें और डिवाइडेड बाई A2 माइनस A1 कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। समझ आया कि नहीं आया? ln क्या है? ln स्टैंड्स फॉर नेचुरल, n फॉर नेचुरल, l फॉर लॉगरिथम। समझ आया कि नहीं आया? तो ये लॉगरिथमिक मीन है। समझ आ गया बच्चों? बोलो। अब यहाँ इस यस केस में सर। देखो तो क्या होगा, A2 की जगह पे A आउटर है तो 2 पाई R नॉट आउटर रेडियस L। समझ आ गया? सिलेंड्रिकल लेंथ। और A1 इनर है तो 2 पाई RI L। गेटिंग इट और नॉट? तो ये आपको सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें आपको रेसिस्टेंसेस रटने नहीं पड़ेंगे, बट ए वुड बी डिफरेंट इन ईच केस। समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो। तो हम एनी हाउ इस रेसिस्टेंस तो हमें कैसे लानी पड़ेगी इक्वेशन, वो देखो। तो हमें इनर टेम्परेचर माइनस आउटर टेम्परेचर का डिफरेंस लाना पड़ेगा, और रेसिस्टेंस के जगह पे इस टाइप के टर्म्स आने लगेंगे हीट फ्लो में, तो हम समझ लो कि जंग जीत ले गए। बोलो सही बात है कि नहीं? तो ये कैसे आया, कैसे आता है, वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। आई थिंक इस अप्रोच में आपको कुछ भी नहीं रिमेंबर करना। यू नो डेल्टा एक्स वाई के इज द रेसिस्टेंस फॉर प्लेन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक कोई समस्या हो तो पूछ लो ना, नहीं तो फिर ये हम थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच से बता रहे हैं। अब देखो हम ले रहे हैं हालो सिलेंडर। क्या ले रहे हैं बच्चों? हालो सिलेंडर। सिलेंडर ले रहे हैं। अब हम वही जो अभी अभी तक बताए हैं वही डिराइव करने जा रहे हैं। समझ रहे हैं या नहीं? मतलब टेम्परेचर क्यू हम निकालेंगे और क्यू के डेनोमिनेटर में ये चीजें आएंगी जो हम ऊपर लिख चुके हैं। ठीक है, अब वो कैसे आएगा वो हम देख रहे हैं। तो प्लेन वाल, अब हम हालो सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो इसमें देखो क्या होगा बच्चों। ये आपका सिलेंडर है तो आर आई इनर रेडियस है और आर नॉट आउटर रेडियस है। ये सिलेंडर है ऑफ लेंथ एल। So this is the length of the cylinder. अब बताओ हीट फ्लो क्या होगा, बोलो जल्दी से। Q इज इक्वल टू व्हाट? ये हीट फ्लो रेट है। हीट फ्लो रेट मीन्स Q, जो आप पहले पढ़ते आ रहे हो, हीट फ्लक्स डिवाइडेड बाई ये। बोलो सही बात है। Q डॉट A इज इक्वल टू व्हाट? माइनस के किस डायरेक्शन में हीट का फ्लो हो रहा है बेटा? आर डायरेक्शन में हो रहा है या नहीं? तो dt और dr लिखोगे जैसे dt और dx लिखते थे। अब चलो, ए जो हीट ट्रांसफर एरिया है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 2 पाई आर एल। सिलेंडर के केस में परपेंडिकुलर एरिया, तो 2 पाई आर एल रख दो तो क्या हो जाएगा? क्यू अपान 2 पाई आर एल। ये देखो यहाँ से हम ले रहा है इज इक्वल टू व्हाट? क्यू अपान 2 पाई आर एल इज इक्वल टू माइनस के डी टी ओवर डी आर। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ मुझे कि अब हम वेरिएबल सेपरेट कर लें। वेरिएबल सेपरेशन से इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो वेरिएबल सेपरेट करो तो क्या आ जाएगा? क्यू अपान 2 पाई आर एल डी आर। बोलो सही बात है कि नहीं? इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब इसे इंटीग्रेट कर दो, तो हम इंटीग्रेट करेंगे आर आई आर वन ले लेते हैं। सपोज आर वन, जैसे हम x2 x1 लिए थे तो यहाँ पे भी हम R1 R2 ले रहे हैं, so that confusion would not be there. So R1 inner radius and R2 outer radius. तो हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। R1 to R2 कर दें, ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे टेम्परेचर नोन है। बट अगर हम टेम्परेचर प्रोफाइल चाहते हैं तो एट सम आर, लेट्स से दिस एट दिस पॉइंट, तो R1 to R हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो लेट्स डू दैट फॉर टेम्परेचर प्रोफाइल। तो यहाँ पे आप जानते हो क्यू हीट फ्लक्स तो कांस्टेंट होगा, जो हीट यहाँ पे फ्लो होगा वही बाहर निकलेगा क्योंकि कोई एक्यूमुलेशन हो नहीं रहा है।
तो थ्रू हीट बैलेंस हीट फ्लक्स वुड बी कांस्टेंट, so Q बाई 2 पाई भी कांस्टेंट है और L लेंथ ऑफ द सिलेंडर वुड बी कांस्टेंट, तो ये बाहर ले लिया हमने। तो R जो है केवल वेरिएबल है, तो D सो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, इंटीग्रल dr बाई r। अब r को कहां से कहां तक r वेरी करेगा, R1 टू R ले रहे हैं ताकि यू विल गेट द प्रोफाइल इन टर्म्स ऑफ R, टेम्परेचर प्रोफाइल माइनस के, अब देखो dt ओवर माइनस के dt, तो टेम्परेचर, अब देखो R इज इक्वल टू R1 पे टेम्परेचर बेटा कितना है, लेट से हम मान ले रहे हैं T1 टेम्परेचर, ये बाउंड और ये जहाँ पे टेम्परेचर T है ये हम जानना चाहते हैं, तो अब हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं इसे, वेरी सिंपल इंटीग्रेशन, दिस इज ln R, क्योंकि इंटीग्रल यू नो दैट इंटीग्रल dx बाई x इज इक्वल टू ln x प्लस c। अब यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा कि नहीं, बोलो आएगा कि नहीं, डेफिनेट इंटीग्रल में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आता ना, बोलो ये सर नो, यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो इसलिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है, सुन रहे हो या नहीं बेटा, हेलो, गेटिंग इट और नॉट। सो अब यहाँ पे अब हम फ्रॉम दिस इक्वेशन वी आर मूविंग टूवर्ड्स q upon 2 pi L, of course recording is going on or not, let me see, I think it's going on. Yes, sir. So q upon 2 pi L, q upon 2 pi L और इसका क्या हो जाएगा, ln r अपर लिमिट और लोअर लिमिट r1 इज इक्वल टू माइनस के अपर लिमिट, तो यहाँ पे t इंटीग्रेट करके लाओगे तो यहाँ पे हम क्या लिख दे, सीधे सीधे लिख दे t1 बाई, यहाँ पे अगर माइनस भी कंज्यूम कर लें वैसे क्या होगा, t माइनस t1 होगा, बट अगर माइनस हम कंज्यूम कर लें तो t1 माइनस t होगा कि नहीं होगा, बोलो यस और नो, इंटीग्रेट करके ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, ओके वेरी गुड। सो अब यहाँ से जब हम इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, लेट मी राइट इट, सो q बाई 2 पाई l, ऑलराइट, सो ln r माइनस ln अपर लिमिट रखोगे फिर लोअर लिमिट रखोगे माइनस r1, बोलो सही बात, इज इक्वल टू k t1 माइनस t। अब यहां से हम t की वैल्यू निकाल लें, टी आर वुड बी अ फंक्शन ऑफ r, तो वो हमें टेम्परेचर प्रोफाइल मिल जाएगी। सो t की वैल्यू यहां से निकालनी है, तो t की वैल्यू निकालोगे तो कैसे होगा बेटा, देखो t का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे t का कोफिशिएंट क्या है, देखो t का कोफिशिएंट k, तो k से डिवाइड करोगे, दूसरा यहाँ पे माइनस में है t तो इसे ट्रांसपोज करोगे इन दिस डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड, सो ट्रांसपोजिंग द टर्म माइनस के टी इन द लेफ्ट हैंड साइड and dividing by k throughout the equation. So what you will get? No, you will be getting the value of t. Okay, t is equal to, और ये पूरी साइड दूसरी साइड में लेके जाओ, तो दूसरी साइड में लेके जाओगे तो what you will be getting? So यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे t1 तो रहेगा ही, राइट साइड में था, राइट साइड में ऐसे एज इट इज रहेगा, k से डिवाइड कर रहे हो तो t1 ही केवल मिलेगा, माइनस इसको नेगेटिव राइट हैंड साइड में ला रहे हो तो माइनस q डिवाइडेड बाई 2 पाई, k से डिवाइड भी करना है तो 2 पाई के एल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई ln r माइनस ln r1, बोलो सही बात है कि नहीं। सो दिस इज व्हाट यू गेट द टेम्परेचर प्रोफाइल, बोलो सही बात है, सही बात है। हाँ, तो ये आपको मिल गया। अब यहाँ से टेम्परेचर प्रोफाइल क्या मिल रही है आप देख के मुझे बताओ, तो आपको कोफिशिएंट्स देखना है, तो t एज ए फंक्शन ऑफ r, देखो r आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब है t इज लीनियर विद व्हाट, r और नॉट, लीनियर नहीं है r के साथ, ln r के साथ लीनियर है, किसके साथ लीनियर है, ln r के साथ लीनियर है, इसीलिए आपको सिंपल एरिया नहीं लॉगरिथमिक एरिया की जरूरत पड़ती है, समझ में आया। तो यहाँ पे t और ln r के बीच आपको जो ग्राफ मिलेगा वो लीनियर मिलेगा, एम आई राइट और रॉन्ग। सो t एंड ln r के बीच आपको लीनियर ग्राफ मिलेगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखो हम जानते हैं r इज इक्वल टू
R इज इक्वल टू R2 मीन्स आउटर सिलेंडर पे कितना है टेम्परेचर, R इज इक्वल टू R2 पे टेम्परेचर कितना है, T2 मान लो, तो Yes, sir. T2 टेम्परेचर है तो क्या हो जाएगा, तो इस इक्वेशन में रखो, तो व्हाट यू गेट, हम इसे इक्वेशन 1 नाम दे रहे हैं, तो इक्वेशन 1 में रखोगे तो क्या मिलेगा बेटा, बोलो T2 T1 T इज इक्वल टू T2 रख दिया, T1 माइनस Q 2 पाई KL, R इज इक्वल टू किस वैल्यू पे T2 था, R2. R2 माइनस ln R, आई एम वेरी हैप्पी यू आर अंडरस्टैंडिंग, तो ये मिल गया, ठीक है। अब यहां से Q की वैल्यू निकाल सकते हो आप, तो देखो हमने एक तीर से दो शिकार किए हैं, मतलब टेम्परेचर प्रोफाइल एज वेल एज हीट हीट फ्लक्स। Flux. तो अब आप देखो Q इज इक्वल टू क्या मिल गया, Q इज T2 इक्वल minus टू व्हाट, बोलो निकालो, Q इज इक्वल टू K, ओके, K 2 पाई L ln R2 बाई R1, इसे हम ln R2 बाई R1 लिख दिए, समझ आया है ना, Yes, sir. Yes, sir. T1 minus T2, can you pause and check this is correct or not, I think it is correct, Yes, sir. Correct. करेक्ट है ना, तो ये K की Correct, sir. वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या था कि हमने क्या कहा था आपसे, आप मुझे बताओ, ये हीट ट्रांसफर रेट जो था इसको हमने कहा था आपको कंपेयर किससे करना है, कि T1 माइनस T2 ऊपर रहे और बाकी टर्म्स नीचे लाने हैं सिलेंडर के लिए, बोलो सही है कि नहीं, बाकी Yes, टर्म sir. कैसे लाओगे, नीचे लाओ, नीचे बाकी टर्म नीचे लाओ बच्चों, जो 1 नीचे by है K उसे and रहने L. दो, ln R2 बाई R1 नीचे है तो रहने दो, ठीक है। अब फिर On ये जो ऊपर on है K. 2 पाई KL ये नीचे आ जाएगा कि नहीं, 2 Yes, sir. पाई KL, तो हम L लिख दे रहे हैं और K को हम साइड में ले रहे हैं, समझ आया कि नहीं, ये हो जाएगा, एम आई राइट। अब मुझे बड़ी ईमानदारी के साथ एक चीज बताना कि यहाँ पे वहां पे क्या रहता था, K तो रहता था इसलिए K को साइड में लिए, अरे हमें इस फार्म में लाना है कुल मिला के ना, L बाई K, समझ रहे हो, व्हाई आई एम डूइंग दिस, रेसिस्टेंस इन द डिनोमिनेटर, सो L के जगह पे आप अभी हमने कुछ यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे हमें लाना पड़ेगा क्या, R2 माइनस R1, समझ में आ रहा है, क्योंकि दिस इज द थिकनेस, x2 माइनस x1 के फॉर्म में ही हम सब लिखना चाहते हैं ना, तो और टारगेट इज दैट, तो हमें R2 माइनस R1 ऊपर लाना है न्यूमरेटर में, और हमें नीचे क्या लाना है, K और A, एरिया, समझ में आ रहा है या नहीं, तो ये बात हमें करनी है। तो हम क्या करेंगे कि आप कुछ चेंजेस लाएंगे, अब देखो कैसे हम वो चेंजेस ला रहे हैं, वो चीज आपको ध्यान से देखनी है, ओके ऑल राइट, let me tell you something that is very important, तो अगर हम यहाँ पे R2 बाई R1, ऑल राइट, 2 पाई R2 माइनस R1 से अगर हम नीचे और ऊपर दोनों मल्टीप्लाई कर दें, देखो क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि R2 माइनस R1 चाहिए ना हमें, बोलो जैसा नो, तो हम R2 माइनस R1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, बोलो करना पड़ेगा या नहीं, Yes, sir. R2 माइनस R1, क्योंकि हम वो लाना चाह रहे हैं, ये हो गया। अब मुझे ये बताओ बड़ी ईमानदारी से साथ कि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये 2 पाई, अगर हम इन साइड ले जाएंगे तो 2 पाई एल, तो 2 पाई R2L, 2 पाई R2L क्या है, A2 है या नहीं, बोलो, Yes, और sir.
जब इसको इसी से मल्टीप्लाई करोगे तो A1 है कि नहीं, बोलो। तो यस सर। हम बहुत कुछ जंग जीत चुके। तो क्या हुआ, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई व्हाट, बोलो क्या लिखें, R2 R2 minus R1. माइनस R1 थोड़ा धीरे बोले करो यार, ln, थोड़ा धीरे बोले करो यार, इतना जोर से सब लोग डिस्टर्बेंस हो जाता है, R2 ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा है बाई R1, ठीक है, ये समझ में आया। एंड दिस डिवाइडेड बाई K, ऑलराइट, A2 माइनस A1, ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 ln, यहाँ पे 2 पाई से ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 पाई एल से और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। तो 2 पाई एल मल्टीप्लाई कर दे रहे, 2 पाई एल R2 डिवाइडेड बाई 2 पाई एल R1, यहाँ पे 2 पाई एल से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, डिवाइडेड बाई के A2 माइनस A1. Now what you get? T1 minus T2 upon R2 minus R1. ALM. समझ आया कि नहीं आया, मैंने Yes, sir. 2 पाई एल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो T1 माइनस T2 R2 माइनस R1 और ln, और 2 पाई R2L है ये, तो ये क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A2. ln A2 माइन बाई A1 हो गया, Yes sir. डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, K2. A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, बट अभी हमें चेंज करना पड़ेगा कुछ, A2 माइनस A1। आई थिंक K जो है वो ऊपर है, ये देख रहे हो K जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे K, सी K, this K ln R2 by R1 and this is K, all right, K, so it will come over top, so K तो यहीं पे है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो K, No sir. No sir. अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो, तो हम K, अब K ऊपर ले रहे हैं, K T1, या K तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ से आपको रेसिस्टेंस पता चल गया, और इसको मैंने क्या बोला था अभी, लॉगरिथमिक एरिया बोला था कि नहीं, अपनी डेफिनेशन बताई थी। Yes sir. ये लॉगरिथमिक Yes, एरिया है या नहीं है, इतना बोलो, लिख सकते है। हैं। तो दिस इज Yes, इक्वल sir. टू T1 माइनस T2 R2 माइनस R1, ठीक है, और इसके जगह पे क्या हो गया, ये क्या है आपका लॉगरिथमिक एरिया है, so how do you write that, Upon K ALM. upon K ALM, फिर ALM is what, Logarithmic mean area. Logarithmic area. ALM is what, यहाँ पे A2 ALM की minus A1. डेफिनेशन में थोड़ा A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई ln A2 डिवाइडेड बाई A1, समझ में आया, यही तो होगा, तभी तो आप लिख पाओगे, बोलो, सही बात है। Yes sir. R2 माइनस R1 बाई के, R2 माइनस R1 बाई के, और ALM मीन्स ये, तो जो हमने लॉगरिथमिक एरिया की डेफिनेशन बताई थी ये बात पहले, उसमें एक चेंज लाना है, जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में, ये चीज
बस इतना चेंज लाना है आपको कि ALM was not this but A1 minus A2 divided by ln A1 by A2. You can write it as A2 minus A1 as well, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, A2 minus A1 divided by ln A2 by A1 as well. सही बात है कि नहीं? हाँ ठीक है, सही बात है। दिस इज द डेफिनेशन। ये हो गया बेटा। तो अब इसमें आपको ये पता चल गया। अब ये यहाँ से रेसिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है? इफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, स्मॉल क्यू से भी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर लिखते हैं, तो क्यू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है अगर, तो क्या हो जाएगा, इसे क्या लिख सकते हो, T1 माइनस T2 एंड रेसिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग ये है सीधे, तो RTH इन केस ऑफ सिलेंडर, हालो सिलेंडर क्या हो गया बेटा, R2 minus बोलो, R1 divided by R2 माइनस R1 थिकनेस अपॉन K A LM। LM. बोलो, ये चीजें हम लेके चले थे कि ये हम ड्राइव करना चाहते हैं। यहाँ पे वेरी स्टार्टिंग में हमने बताया था आपको कि हम ड्राइव करना चाह रहे हैं। ये देखो, ये हो गया ड्राइव, बोलो ठीक Yes, है। sir. अब हम स्फीयर पे आएंगे, तो सिमिलरली यू कैन डू फॉर स्फीयर और नॉट, बोलो Yes, sir. कर सकते हो कि बताना पड़ेगा? यस सर। हाँ, तो सिमिलरली इफ यू डू फॉर स्फीयर, स्फीयर में क्या हो जाएगा, जो चेंजेज आएगा वो मुझे बता दो। यही सारी चीजें रहेंगी, बट स्फीयर में जो एरिया होता है वो सरफेस एरिया कितना होता है बताओ, 4πr² होता है। तो Q बाई A जो आपने लिखा था वो यहाँ पे लिखोगे माइनस KdT ओवर dr फॉर स्फीयर, क्या हो जाएगा, QA कितना हो जाएगा यहाँ पे 4πr², वेरिएबल सेपरेट भी साथ में कर ले रहे हैं, dr माइनस KdT हो जाएगा कि नहीं। अब हम इंटीग्रेट इसे कर देंगे, तो इंटीग्रेट करोगे तो Q अपॉन 4π इंटीग्रेट dr ओवर r², क्या हो, कहाँ से कहाँ तक, हम R1 इनर रेडियस टू आउटर, हम बीच का ले रहे हैं R, ताकि हमें R टेम्परेचर प्रोफाइल में मिल जाए। तो क्या मिलेगा, माइनस के अगर कांस्टेंट है तो T1 टू T dt, and if you integrate all those things what you will get, 4q क्या मिलेगा, 4q by 4π, I am putting the limit as well, 1/r1 minus 1/r, समझ में आया, बोलो, इंटीग्रेट करोगे लिमिट पुट करोगे तो ये आएगा, इज Yes, sir. इक्वल टू माइनस के T1 माइनस टी कर देना है, तो यहाँ पे T माइनस T1 आएगा, तो T1 माइनस टी करोगे तो कंज्यूम हो जाएगा माइनस साइन, तो T1 माइनस टी कर दो। चलो, वेरी सिमिलर अप्रोच। और वैल्यू ऑफ T जो यू विल बी गेटिंग, T इज इक्वल टू, जस्ट सॉल्व दैट वेरी इजी अलजेब्रा, ये T1 K से डिवाइड कर देना है, ट्रांसपोजिंग कर देनी है बस, 4π K 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R, ये टेम्परेचर प्रोफाइल मिल जाएगा कि नहीं, बोलो। अब हम R इज इक्वल टू R2 पे T2 मान लें, वेरी सिमिलर अप्रोच, R इज इक्वल टू R2 पे T इज इक्वल टू T2, देन व्हाट यू विल गेट, बोलो, T2 इज इक्वल टू T1 माइनस Q बाई 4π के, क्या होगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, तो ये यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा, Q की वैल्यू मिल जाएगी, तो Q इज इक्वल टू K, अब हम R1 R2 हम तो K और 4π R1, ये एलसीएम लोगे, R1 R2 हो जाएगा, कर लोगे, R1 R2 बोलो, ठीक है, 4π R1 R2, और यहाँ पे क्या आएगा, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1, बोलो सही बात है, ये मिल जाएगा। हाँ, अब क्या मिलेगा आपको,
अब क्या लिख सकते हो यहाँ से, Q इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट ऑफ 4 पाई R2 R1 का स्क्वायर कर दो। देखो मैं 4 पाई लाना है तो स्क्वायर रूट में ले रहे हैं तो 2 बार 4 पाई रखोगे तभी तो स्क्वायर रूट में लोगे तो 4 पाई आएगा। तो देन अगेन 4 पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि हम A1 A2 लाना चाह रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन, समझ रहे हो। ये हो गया, ये सॉरी R2 पे स्क्वायर होगा यहाँ पे, और देन यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। अब यहाँ से आप लिख सकते हो उसी फॉर्म में, Q इज इक्वल टू व्हाट, के स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, A1 A1 A2, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, और T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R2 आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। बताओ जंग जीत चुके आधा की नहीं। हाँ, तो अब देखो Q इज इक्वल टू व्हाट, Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ये तो ज्योमेट्रिक मीन है तो के AGM लिख सकते हो, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। अब लिख डालो, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, T1 माइनस T2 रखो ऊपर और बाकी जो आएगा वो दैट विल वर्क एज ए रेसिस्टेंस। तो क्या होगा यहाँ पे, R2 माइनस R1 एज इट इज, एंड इसको लाओगे तो क्या आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा, विद इन डिनोमिनेटर, सो के AGM। तो ये पूरा का पूरा टर्म रेसिस्टेंस की तरह हो गया कि नहीं। इफ यू कंपेयर विद इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, सो यहाँ से आपको RTH ऑफ स्फीयर पता चल गया, कितना, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई व्हाट, RTH स्फीयर, क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 थिकनेस ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाई K एंड AGM ज्योमेट्रिक। तो अब वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर यू आर गेटिंग। और कन्वेक्शन के लिए मैंने क्या बताया था, 1/HA रेसिस्टेंस, बोलो सही बताया था। ये चीजें हो गई, तो कंडक्शन कन्वेक्शन रेसिस्टेंसेस यू नो एंड यू विल बी गेटिंग। तो वी हैव डिराइव्ड द राइट रिजल्ट, बोलो यहाँ पे हो गया कंडक्शन में, so we got this sphere, and in convection resistance is what, 1/HA। सही बात। अब देखो कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब वेरी सिमिलर रिजल्ट है, एक में ए लॉगरिथमिक एरिया है, लॉगरिथमिक मीन एरिया है, और एक में ज्योमेट्रिक मीन एरिया है। ये सब चीजें जस्ट रिवीजन के लिए। गैस में कैसे होता है कंडक्शन, मॉलिक्यूलर कोलिजन, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, लिक्विड में मॉलिक्यूलर कोलिजन एंड मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, and solid with lattice vibration, flow of free electrons that I told you, and this is the circuit comparison I told you in the last class. This is for convection and all those things I told you, and this is the conductive value of conductivity in general for different, so gases it is very low, and then for insulator it will be of course low, then liquid, then non-metallic sorted metal alloys it will be high, pure metals very high, crystals very high. So this is the problem. Consider 0.m high thick and double pane window consisting of 4 mm thick layer of glass, this separated by 10 mm stagnant air. So देखो यहाँ पे दो ग्लास है, यहाँ पे बीच में एयर है, आप देख रहे हो। प्रॉब्लम को ऐसे बता दे रहे, यहाँ पे बीच में एयर फिल है और यहाँ पे ग्लास है, ग्लास विंडोज है, यहाँ पे इसकी थिकनेस होगी कुछ, तो यहाँ का टेम्परेचर हमें पता है और यहाँ का हमें टेम्परेचर पता है, एंड देन सीरीज ऑफ रेसिस्टेंसेस, तो यहाँ पे कन्वेक्शन रेसिस्टेंस होगा, तो 1/H1A, वैल्यू ऑफ H1 इज गिवन टू यू, A इज गिवन टू यू, सो यू कैन फाइंड आउट द H1A, एंड देन यू नो ग्लास का तो थिकनेस दोनों तरफ सेम है, सो जो होगा यहाँ पे द वैल्यू ऑफ R1 वुड बी सेम एज R3, so R1 R3 value would be equal to R2, this is the thickness, so this is like plane wall, so L1 by K1A, everything is given, you will be able to find out this, and then R air, in between air is filled, so air thickness, this is convection because air, but stagnant air है ये, तो stagnant है तो conduction resistance होगा
तो Ly K2 L2 by K2A, L2 is given, this is mm में है तो इसे कन्वर्ट कर लोगे मीटर में, and then you will write 0.01 and you will put K2 and A value and you will be getting this value. Then again convection on this side, so you will represent the resistances, all resistances, and these are in series, so you will add all resistances, and all resistances, by adding all resistances Q dot यहाँ T infinity 1 T infinity 2 दिया हुआ है, means 20 degree एक दिया हुआ है और एक 10 degree दिया हुआ है, minus 10 degree, so you will put right there and you will be getting this value of Q dot. Okay, so one convection resistance, because you want to get T1, so Q dot or convection 1, and that's how you will get the value of temperature. So this is the problem solving approach in general. तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो, हेलो, हाँ बच्चों, No. so I should stop right here. और ये जो अभी हमने पढ़ाया है शेयर कर दें इसको PDF में कन्वर्ट करके. Yes, sir. ओके, अटेंडेंस Yes, sir. आप लोग लगा देना. अटेंडेंस हम फ्लोट कर देंगे अभी, तो 3 बजे तक हम टाइम दे देंगे. 3 बजे तक कभी भी आप लगा सकते हो, है ना. अभी 10-15 मिनट बाद विजिट कर लेना अटेंडेंस के लिए, ठीक है. ओके, बाय बाय. Thank you, sir. Thank you, sir.